Hello, students. Good morning, everybody. Yes, this is your seventh chapter, beta. Yes, seventh chapter number of your first book, Hornbill, I think. And chapter title is Birth. A.J. Cronin. Let's start, beta. What's the story of birth? Here we go. Andrew Manson was a young doctor. He had newly passed out of a medical school. He had joined as an assistant to Dr. Edward Price. Their surgery was in a small Welsh town in Blenheim. Yes, बेटा. What does it mean? एंड्रू मेंशन्स एक यंग डॉक्टर था. उसने मेडिकल स्कूल अभी हाल ही में पास किया था और अब वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था डॉक्टर एडवर्ड के पास. और कहाँ पे तैनात था वो? एक छोटे से स्मॉल टाउन में, वेलिश टाउन में. और ये वेलिश टाउन कहाँ था? ब्लेनेली में. Yes, बेटा. It was a mining town. The part of the town where the doctor's surgery was situated was known as Braingower. Andrew lived close to the surgery. ये एक ऐसा टाउन था जहाँ मैक्सिमम लोग, माइनिंग टाउन था बेटा, खानों में काम करने वाले थे. नगर का वह हिस्सा जहाँ डॉक्टर का ये ऑफिस था, सर्जरी ऑफिस था, क्लिनिक था यू में से, उसे ब्रिनकोवर के नाम से जाना जाता था. एंड्रू अपने इस ऑफिस के पास ही रहता था. जॉय मॉर्गसन was a resident of this town. He was a well-built person and worked as a driller at the mines. He lived with his wife. They had been married for about 20 years, but so far they didn't have any child. Now, Mrs. Morgan was expecting her first child. जॉय मॉर्गन इस टाउन का एक वासी था. वह एक हट्टे कट्टे शरीर वाला व्यक्ति था और खानों में ड्रिलर का काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था. उसका विवाह हुए लगभग 20 साल हो गए थे, किंतु अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था. एंड दिस टाइम Mrs. Morgan was expecting her first child. It was about midnight. Andrew loved a girl named Christine. After spending a disappointing evening with her, he came back home. He found Morgan waiting for him restlessly. An expression of relief came on Morgan's face at the sight of the doctor. He told the doctor that he had been waiting for him for an hour. He said that his wife needed his presence because the child was expected to be born before time. आधी रात का समय था. एंड्रू क्रिस्टीन नामक एक लड़की से प्यार करता था. उसके साथ अभी कोई एक डिसअपॉइंटिंग सी शाम बिताने के बाद वह आया था, यानी कि उसका मूड अभी ख़राब था. जैसे वह अपने क्लिनिक में आया, उसने देखा कि मॉर्गन उसकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था. डॉक्टर को देखकर मॉर्गन के चेहरे पर राहत का भाव आ गया. उसने डॉक्टर से कहा कि वह उसकी 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था. उसने कहा कि उसकी पत्नी को उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत थी क्योंकि बच्चे का जन्म समय से पहले होने की उम्मीद थी. The child was expected to be born before time. Andrew went into the house for his bag. Together, they set out for Morgan's house, which was at 12 Blenheim Terrace. Andrew was feeling very dull and tired. He had no idea that this night call would prove unusual. He had even less idea that it would influence his whole future in Blenheim. Yes, बेटा. एंड्रू अपना बैग लेने के लिए घर के अंदर आया.
दोनों इकट्ठे ही मॉर्गन के घर की तरफ चल दिए, जो कि 12 ब्लेनर टेरेस पर था। एंड्रयू बहुत ही नीरस और थका हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे इस बात का कोई विचार नहीं था कि उस रात का यह नाइट कॉल यानी ये रात का बुलावा कैसे अनयूजुअल सिद्ध होगा। उसे इस बात का और भी कम अनुमान था कि इससे ब्लेनी से उसका सारा फ्यूचर इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित हो जाएगा। When they reached the doctor, the door of number 12 Morgan stopped outside the door. He said that he won't go in. His voice showed signs of worry when he said to the doctor, I know you will do well for us. जब वो वहाँ पहुँचे तो मॉर्गन वहीं रुक गया और वह अंदर नहीं गया, और उसकी आवाज़ में थोड़ी सी चिंता थी और उसने डॉक्टर से कहा, I know you will do well for us. मुझे पता है तुम हमारे लिए जो करोगे अच्छा ही करोगे। Inside a narrow stair led up a small bedroom. It was clean but poorly furnished. It was lit only by an oil lamp. Mrs. Morgan's mother was sitting beside the patient. She was a tall, grey-haired woman of nearly 70. An elderly midwife was also there. Both of them watched Andrew's expression as he moved about the room. कहता है अंदर एक तंग सी सीढ़ी के ऊपर की तरफ एक छोटे से बेडरूम को जाती थी सीढ़ियाँ। यह साफ था किंतु बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं था। इससे केवल एक तेल वाला लैंप जल रहा था। श्रीमती मॉर्गन की माँ पेशेंट के पास समीप बैठी थी। वह एक लंबी सफ़ेद बालों वाली लगभग 70 वर्ष की लेडी थी। वहाँ एक बुजुर्ग दाई भी थी, मेड। दोनों औरतें एंड्रयू के चेहरे के भावों को गौर से देख रही थी जब वह कमरे से इधर उधर चक्कर काट रहा था। Let me make you a cup of tea, doctor, said Mrs. Morgan's mother after a few moments. Andrew smiled a little. He saw that the old woman was wise in experience. She knew there was a period of waiting, and she was afraid that the doctor would leave the case, saying he would return later. Don't worry, mother, said Andrew. I will not run away. कुछ पल के बाद श्रीमती मॉर्गन की माँ ने कहा, डॉक्टर, मैं आपके लिए चाय का एक प्याला बना देती हूँ। एंड्रयू थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। उसने देखा कि वह वृद्ध लेडी बहुत ही अनुभव और बुद्धिमानी थी। वह जानती थी कि कुछ वेटिंग का टाइम है, एंड शी वॉज अफ्रेड दैट, उसे ये डर था कि डॉक्टर चला ना जाए। ठीक है, सेइंग द वुड रिटर्न हियर। डोंट वेरी मदर, सेड एंड्रयू। एंड्रयू ने कहा कि डोंट वेरी, मैं जाऊंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रिंक द टी विच शी गेव हिम। Though he was very tired, he knew he could not have even an hour's sleep if he went home. He knew too the case they would demand all his attention, so he decided to remain until everything was over. Yes. नीचे रसोई घर में जाकर उसने चाय पी और उसने उस वृद्धा से उसे जो बना कर दी थी। यद्यपि वह बहुत थका हुआ था, वह जानता था कि यदि वह घर चला गया तो वहाँ 1 घंटे की भी नींद नहीं ले पाएगा। वह इस बात को भी जानता था कि वहाँ के रोगी को उसके द्वारा पूरा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि पूरा काम समाप्त होने तक वहीं रहेगा। An hour later, he went upstairs again. He noted the progress made and came down once more. He sat down by the kitchen fire. There was no sound except the beat of Morgan's footsteps as he
paced in the street outside. The old woman sat opposite him. She remained quite motionless, with her eyes never leaving his face. Andrew was lost in his thoughts about Christine. 1 घंटा बाद वह दोबारा सीढ़ियों से ऊपर गया। उसने देखा कि केस में कितनी प्रोग्रेस हुई थी और एक बार फिर नीचे आ गया। वह रसोई घर वाली आग के नज़दीक बैठ गया। उसने मॉर्गन के पैरों की आवाज़ के अतिरिक्त कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जो वह बाहर गली में चक्कर काट रहा था, और वो वृद्ध औरत एंड्रू के सामने की तरफ बैठी थी, अपोजिट। वह लगभग बिना हिले बैठी रही। उसकी आंखें एंड्रू के चेहरे से बिल्कुल हट नहीं रही थी। एंड्रू क्रिस्टीन के बारे में अपने विचारों में खोया हुआ था। At last the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew looked at the clock. It was now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He saw that he could now begin his work. An hour passed. It was a long, hard struggle. Then, as the first rays of dawn appeared, the child was born, lifeless. फिर नर्स ने उसे बुलाया ऊपर। वह आया। उसने देखा कि वह अपना काम कर सकता है, और 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस। एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वह लाइफलेस था, बेजान सा। As Andrew looked at the lifeless form, a shiver of horror went through his body. He had never imagined such thing would happen after all that he had promised. His face, heated with his own excretions, chilled suddenly. He couldn't decide whether to resuscitate the child first or attend to the mother. वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि बच्चे को रेस्क्यू करे या मदर को, who was herself in a serious state. वह खुद भी सीरियस थी। Instinctively he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless. उसने बच्चा तो नर्स को दे दिया और उसने सारी अटेंशन सुशैन पर लगाई, जो कि कोलैप्स्ड पड़ी थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस थी। उसकी पल्स जो है बहुत ही डाउन थी। ही गेव हर एन इंजेक्शन एंड आफ्टर ए फ्यू मिनट ऑफ फेवरिश एफर्ट सुशैन्स हार्ट गेंड स्ट्रेंथ। सुशैन का दिल को स्ट्रेंथ मिली। नाउ ही कुड सेफली लीव हर। अब वह उसे लीव कर सकता था और चाइल्ड की ओर ध्यान लगा सकता था। स्विमिंग राउंड टू द नर्स ही आस्क्ड, वेयर्स द चाइल्ड। उसने नर्स की ओर घूमते हुए कहा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर। मिडवाइफ ने एक डरावना सा जेस्चर दिया। शी हैड प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड। उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रू knelt down, finishing among the sudden newspaper below the bed. He pulled out the child. उसने बच्चे को बाहर निकाला। It was a boy, perfectly formed. यह एक लड़का था जो अच्छे से जो फॉर्म्ड था, विकसित था। The body was yet warm. उसका शरीर अभी भी गर्म था। It was white and soft as tallow. बिल्कुल वाइट था और सॉफ्ट था, टैलो की भांति। टैलो का मतलब स्किन ही होता है बेटा। The body was yet warm. The skin was smooth and tender. उसकी स्किन भी बहुत स्मूथ थी और नरम थी। The head lolled on the thin neck. The limbs seems boneless. उसका सिर थिन सी गर्दन पर ऐसे लुढ़का हुआ था और उसके लिम्स
बोलनेस से दिखाई दे रहे थे। When Andrew looked at the child, he at once knew that it was a case of एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्या होती है? एक अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये बेहोशी, ऑक्सीजन की कमी से गर्भ में बच्चा कई बार बेहोश हो जाता है। एस्पेक्सिया। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट। अब वह एकदम से तैयार हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही सेड टू द नर्स, एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक, जाओ एक गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आओ, नर्स से कहा, और एक बेसिन भी। बेसिन का मतलब कोई बर्तन, जल्दी। He took a blanket and laid the child upon it. उसने एक ब्लैंकेट लिया, उसने बच्चे को, नवजात बच्चे को उस पर लेटा दिया। Then he began to special method of respiration. उसने सांस देने की एक विशेष मेथड शुरू किया। The basins arrived. बेसिन्स आ गए, बर्तन। Andrew put cold water into one basin. Into the other he mixed water as hot as his hand could bear. दूसरे में उसने एक मिक्स वाटर रखा जिसमें उसका हाथ सहन कर सके। Then like a crazy juggler he hurried the child between the two basins. फिर उसने एक क्रेजी बंदारी की तरह बच्चे को, नवजात बच्चे को दोनों बेसिन्स में रखा जल्दी जल्दी। Now he plugged it into the icy water. अब उसने उसको आइसी वाटर में रख दिया। Now into the hot one. फिर उसने दोबारा गर्म पानी में रख दिया। 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट बीत गए। Sweat was now running into Andrew's eyes. एंड्रू की आँखों तो पसीना आ गया था। His breath was coming pantingly, but no breath came from the body of the child. But no breath came from the body of the child. इतना उसने किया लेकिन बच्चे को भी सांस नहीं आ रही थी। A terrible scene of defeat came on him. एक टेरिबल सा सीन उसके ऊपर आ गया। He felt the midwife watching him. उसने ये भी देखा कि वह midwife भी उसे देख रही है। The old lady stood with her back pressed against the wall. वह बूढ़ी लेडी भी उसके पीछे खड़ी थी और दीवार को प्रेस कर रही थी। She had remained there all the time. वह सदा से वहाँ खड़ी थी। With her hand pressed on her throat. Andrew remembered her longing for a grandchild. Andrew को याद आ रहा था कि वह हमेशा से एक ग्रैंडचाइल्ड चाहती थी। It was a great as her daughter's longing for this child. All hopes had dashed away. सारी आशाएं खत्म हो रही थी। All efforts has proved futile beyond remedy. सभी एफर्ट फर्टाइल प्रूव हो गए थे। बियॉन्ड रेमेडी, कोई उपचार नहीं सही साबित हो रहा था, कोई इलाज नहीं था। The floor was now all wet and in a mess. The towel on which Andrew held the child was also all wet. फ्लोर भी वेट हो गया था और वो टॉवल जिसमें एंड्रू ने बच्चे को रखा था वह भी भीग गया था। The child had become so wet and slippery that Andrew almost dropped it. बच्चा भी इतना गीला और स्लिपरी हो गया था कि एंड्रू के हाथों से गिर रहा था। It looked like a strange white fish. यह बहुत ही अजीब सा वाइट फिश की तरह दिख रहा था। बच्चा बेजान था, बचा नहीं पा रहे थे उसको। For mercy's sake, doctor, said the midwife, it's stillborn. मिडवाइफ ने कहा, भगवान के लिए डॉक्टर, यह एक स्टिल बॉर्न है, यह मृत पैदा हुआ है। एंड्रू डिडंट heed her. Having labored in vain for half an hour, he still made one last effort. उस एक आधे घंटे से जो व्यर्थ की लेबर करने के बाद उसने अपना फिर आखिरी एफर्ट किया। He rubbed the child with a rough towel.
He pressed and released the little chest with both his hands. उसने एक रफ से टॉवल से बच्चे को रब किया, दोनों हाथों से उसे प्रेस किया, फिर रिलीज़ किया. Thus he tried to get breath into that limp body. उसने उस कमज़ोर शरीर में ब्रीथ डालने की बहुत प्रयास किया. And then, as by a miracle, the little chest gave a short heave. फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ. उस छोटी सी चेस्ट में एक हीव आई, एक सांस आई. Another, एक और आई. And another, एक और सांस आई. Andrew continued with his effort feverishly. एंड्रू ने जारी रखा अपना प्रयास. The child had started gasping deeper and deeper. अब बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया. Gasping means उखड़ी हुई सांसें, कुछ उखड़ी हुई सी सांसें ली. Deeper and deeper. A bubble of mucus came from one tiny nostril. छोटी सी नाक में से एक बबल भी दिखाई दिया. मस्कस, ठीक है, उसकी नोज में से एक बबल निकला. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. अब लिम्स बोनलेस नहीं रहे थे. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. अब उसका सिर भी स्पाइनलेसली नहीं था, यानी कि सिर भी होल्ड हो गया था. द स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक. और उसकी स्किन भी वाइट से पिंक टर्न हो गई थी, यानी खून चलना शुरू हो गया था. एंड देन as quickly came the child's cry. और फिर बच्चे की रोने की आवाज़ भी आई. Dear Father in heaven, said the nurse through her tears of joy. It comes alive. नर्स ने भी कहा, ओ हे भगवान. ओ उसकी आंखों में आंसू आ गए. It comes alive. अरे ये जीवित है ये. Then Andrew handed the child to the nurse. He was feeling weak and dazed. उसने बच्चे को नर्स के हाथों में दे दिया. यह कमज़ोर और नींद में प्रतीत हो रहा था. About him the room was in a litter of all sorts of things. Upon the bed the mother still dreamed through the एनेस्थेटिक्स मीन्स जिसको एनेस्थीसिया दिया गया हो, बेहोश हो. Upon the bed the mother still dreamed through the anesthetic. बेहोशी में भी कोई स्वप्न देख रही थी. The old woman still stood against the wall. और वो ओल्ड वुमन यानी एंड्रू की माता, वृद्ध माता, वह अभी भी दीवार के साथ खड़ी थी. But her hands were together. Her lips moved without sound. She was praying. यानी कि वह विस्परिंग कर रही थी. उसके लिप्स विस्परिंग कर रहे थे, बिना आवाज़ के हिल रहे थे. एंड्रू पुल्ड ऑन हिज जैकेट एंड सैड. एंड्रू ने अपना वो डॉक्टर वाली जैकेट उतारी और कहा, आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स. मैं अपना बैग बाद में ले जाऊँगा नर्स. ही वेंट डाउन स्टेयर्स. वह सीढ़ियों से नीचे आया. एंड टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. उसने पानी पिया खूब. He took his hat and coat and left the house. उसने अपना हैट लिया और कोट लिया और चला गया. Outside he found Joy standing on the pavement. बाहर उसने पेमेंट पर यानी कि फुटपाथ पर खड़े जॉय को देखा. With a tense, expectant face. एक चिंतित और घबराए हुए चेहरे के साथ. ऑल राइट जॉय, सैड एंड्रू. बोथ ऑल राइट. ठीक है एंड्रू, दोनों ही ठीक ठाक हैं, सब कुछ सही है. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. ये 5 बज गए थे लगभग सुबह के. ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स. एज एंड्रू वॉकड विद दैम ही केप्ट थिंकिंग अनकॉन्शियसली. एंड्रू जब उनके साथ जा रहा था, वह अनकॉन्शियसली कुछ सोच रहा था. आई हैव डन समथिंग. मैंने आखिरकार कुछ किया है. ओ गॉड, हे भगवान. आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. आखिरकार मैंने कुछ रियल किया है. आखिरकार मैंने कुछ असल काम किया है. सो
this was the true, and this was the miracle happened by a doctor's hand, and this was the story of birth.